A very good morning to all my dear students. Today we are going to start our grammar portion with a very important topic, that is narration or direct or indirect speech, it is also called. Now in this video we will discuss about the definitions of various words, and also we will learn the usage of the direct and indirect speech in our daily life, as well as we will cover the objectives and the rule of the narration. Now let's move towards the next slide. Here we are saying that narration. What do you mean by the narration here? Narration means storytelling. It may be direct telling or it may be indirect one. So let me give the example how it could be direct and indirect. If there are three persons and you are telling your own secret to someone, and your secret has been told by your best friend to his best friend, then it has been told in a way, then your secret has been told already to the third person indirect way, and the indirect way has been proceeded by the middle one, right? So if you are talking to your best friend and he is talking to his best friend, this is the direct narration. But if your talk has been told to the third person, then it's an indirect narration. Now let me give the example of direct and indirect speech. Direct speech refers a sentence which has divided into two parts, where the first part before comma is called reporting verb, and the part which has just enclosed in the inverted commas is called reported speech. Now the indirect of this very sentence will be like this. He says I am going to New Delhi. Then he says inverted commas remove करने के बाद that कंजक्शन के तौर पर आया, that he is going to New Delhi. अब मैं अगर हिंदी में एग्जाम्पल दूँ तो उसने कहा या फिर वह कहता है आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली. ये बात किसी दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में हुई है, दो ऐसे इंसानों के बीच में हुई है जो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को एक्सपीरियंस करके ये बात बोली है. तो यहाँ पे डायरेक्ट वे हो गया है या फेस टू फेस कह लीजिए. यहाँ इनडायरेक्ट कैसे हुआ कि यही बात अब दो बंदे थे, अब एक बंदे ने अपने फ्रेंड को बताया तो हमारे पास एग्जैक्ट वर्ड आए, क्योंकि फर्स्ट वर्ड ने अपने एग्जैक्ट वर्ड किसको कहे थे, सेकंड वन को. अब जो सेकंड वन है अगर उसे थर्ड वन को यही बात बतानी पड़े तो ये नहीं कहेगा कि वह कह रहा था मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और ये कहेगा वह कह रहा था वह दिल्ली जा रहा है, राइट. इसलिए हम कई बार अपनी आम जिंदगी में ये गलती करते हैं ये कहने की कि वह कह रहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और फिर इसमें पजल हो जाते हैं और फिर हमें दोबारा कहना पड़ता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा था कि वह दिल्ली जा रहा है, right? So let's move towards the next one, but before moving ahead let me revise one thing, that direct speech has been divided into two parts. One is reporting verb and another is reported speech. Remember this, do not forget what is reporting verb and what is reported speech. Here is the definition of the direct speech. Direct speech refers to the exact remark. These are exact remark means exact word. जो exact word फर्स्ट ने सेकंड सिर्फ जो पर्सनालिटी थी उसको बोले थे, और ये इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होते हैं बिकॉज ये एग्जैक्ट रिमार्क होते हैं, एग्जैक्ट स्पीच होते हैं जो किसी पर्सन ने किसी को कहे होते हैं. बट इनडायरेक्ट में क्या है, यही जो चीज़ है वो मीनिंग के तौर पे चेंज हो जाती है. मीनिंग तो यही है, आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली, ही इज़ गोइंग टू न्यू दिल्ली. इन्होंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया मीनिंग को, बट क्या है प्रोनाउंस चेंज हुए हैं. प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल राम इज़ ए गुड बॉय और मैं कहूँ ही इज़ अ गुड बॉय, तो हमने राम के स्थान पर जो ही यूज़ किया है तो वो क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया. और हमारे प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. In the first person pronoun, I, my, me, we or us. In the second one, you, your, yours and yours. And third one, he, she, it, name, they, them, his, her. These are all included in the third person. So remember this one.
एंड हियर इज़ द डायरेक्ट वन वेयर द एग्जैक्ट रिमार्क, एग्जैक्ट वर्ड होंगे किसके, नरेटर के, जो हमें कहानी बता रहा था या फिर हमसे जो बात कर रहा था उसके एग्जैक्ट वर्ड होंगे और उसके एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होंगे। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होगा, वो एग्जैक्ट मीनिंग होगा उस रिमार्क का। यहाँ तो एग्जैक्ट रिमार्क था, लेकिन यहाँ क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट रिमार्क। और द स्पीच इज़ रिप्रेजेंटेड विदाउट द नरेटर्स एग्जैक्ट वर्ड, जो स्पीच है वो प्रेजेंट की जाएगी नरेटर के एग्जैक्ट वर्ड के बिना। अब यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। रवि सैड, रवि कहता है, रवि ने कहा अपने बेस्ट फ्रेंड को, आई एम हैविंग लंच विद माई फैमिली। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि उसने अपने एग्जैक्ट वर्ड बोले हैं। यहाँ रवि सैड ही वॉज हैविंग लंच विद हिज फैमिली, ये इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हुई, क्योंकि ये चीज़ क्या थी, एग्जैक्ट रिमार्क थी या स्पीच थी किसकी, न किसी नरेटर की। और नरेटर कौन था, रवि। रवि ने एग्जैक्ट वर्ड यही कहे थे बीइंग ए नरेटर, बट अब हमने नरेटर तो वही रखा है बट उसकी बात हमने कहीं और पहुंचाई है, तो हम क्या कहते हैं, ही वॉज हैविंग लंच विद हिज फैमिली। ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। अब हम एक फिगर थ्रू समझते हैं कि हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रोसेस कैसे होती है। फॉर दिस लेट मी चूज़ द पेन। राम है, राम बेस्ट फ्रेंड है श्याम का, श्याम की बेस्ट फ्रेंड है सीता। राम ने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब यही बात अगर श्याम को सीता को कहनी है तो कहेगा राम ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है। अब यही बात जो राम ने कही थी, राम के तो एग्जैक्ट वर्ड थे, लेकिन श्याम ने वही बात एग्जैक्ट मीनिंग के तौर पर सीता को बताई है, ना कि एग्जैक्ट वर्ड। अगर वो ये कहता, अगर वो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करता तो सीता कंफ्यूज हो जाती कि श्याम तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। अगर श्याम सीता को ये कहता दैट राम सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये सोचती थी अच्छा राम ने कहा है कि तुम दिल्ली जा रहे हो, लेकिन श्याम को बताना क्या है कि राम दिल्ली जा रहा है, इसलिए उसने क्या चेंज किया, मीनिंग जो है वो एग्जैक्ट रखा बट रिमार्क जो है उसके प्रोनाउन को चेंज कर दिया। और श्याम ने सीता से कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, ये तो मुझे राम ने कहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बट एग्जैक्टली मैं नहीं जा रहा, कौन जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, राम दिल्ली जा रहा है। अब देखिए राम की यही बात, राम की जो एग्जैक्ट बात थी वो तो शाम तक पहुंची। अब शाम ने यही बात एग्जैक्ट मीनिंग के तौर पर किसको बताई, सीता को। अब राम की बात तो सीता तक पहुंच ही गई ना। अब ये पहुंचाई कैसे, अब ये यहाँ से तो यहाँ डायरेक्ट होती, अब शाम ने भी सीता को डायरेक्ट बताई है, लेकिन राम से सीता का कॉन्टेक्ट कैसे हुआ, इनडायरेक्ट वे में, राइट। सो ये हमारा कंसेप्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। सो लेट्स स्टार्ट with our new slide. Let's move ahead. Here is the formula of sun. Sun formula is really very important in the narration if you want to make yourself easy and comfortable with the narration. चलिए हम सीखते हैं किस चीज़ का फॉर्मूला है। देखिए 1 2 3 यहाँ हमारे पास क्या है, प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस किस चीज़ के, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, आई, माई, मी, वी, आर, अस। एंड सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, योर, योर्स। एंड थर्ड वन में क्या आएगा, कोई नेम, ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हर, हर्स। ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। और जो ये SON है, इसमें S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, अब थर्ड पर्सन जो है वो अकॉर्डिंग टू नो चेंज होगा, यानी कि उसमें चेंज ही नहीं होगा। सो रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, अब हमें किस चीज़ की क्या चीज़ देखनी है वो देखते हैं। ये हमें रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होता है, हमें उसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन देखने हैं। अब हम देखकर उनको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सन। ये सन किसका देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में दो यू कैन से सेंटेंस होते हैं, या फिर हम उसे बाइफिकेट कर लेते हैं। एक तो कोमा से बाइफिकेट होता है और एक इन्वर्टेड कोमास में क्लोज होता है, राइट।
सो जो ये वाला हिस्सा होता है हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो हम सबसे पहले 1 2 3 यानी कि इस हिस्से के 1 2 3 यानी प्रोनाउंस चेक करेंगे, देन हम उन्हें अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सन चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई हुआ तो हम उसे किसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के। और रिपोर्टिंग वर्ब में हमें जनरली क्या मिलेगा, ही सेज, ही सेड टू, ही सेज टू। तो हमारे पास ही क्या है, सब्जेक्ट, तो हमारा आई क्या चेंज हो जाएगा, ही में, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव जस्ट लर्नड हियर, यहाँ हमारा आई था वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हुआ और हमें यहाँ क्या मिला, सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। सो हम इस तरीके से उसको चेंज करेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। यहाँ हमारे पास फुल फ्लैश एक यू कैन से एक स्लाइड है जिसमें हमें हर एक चीज़ गिवन है। यहाँ सन सब्जेक्ट है, एस सब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है एंड नो चेंज है। 1 2 3 आर द डिफरेंट प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंस में भी डिफरेंट केसेस आर डिस्कस्ड हियर। सो we have to discuss one thing that we have to see in the first, second, third person of reported speech. Reported speech कहाँ है, we have the reported speech here. I am going to Jaipur. सबसे पहले किसी भी डायरेक्ट स्पीच में क्या देखेंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होती है। और उसमें भी सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले वहाँ प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसका है, रिपोर्टेड स्पीच का, आपको दिख रहा है ये क्या है, कौन सा हिस्सा है, रिपोर्टेड स्पीच है। और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन के, यानी कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, ही, तो जनरली हमारे पास क्या आ गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू जयपुर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड पर्सन एग्जांपल। हियर सी, you सीन द यू पार्ट। आपको सबसे ज़्यादा कुछ नहीं देखना, सबसे ज़्यादा आपको यू पे फोकस, मतलब आपको जो प्रोनाउंस हैं रिपोर्टेड स्पीच में उस पर फोकस करना है। और आपको उस पर फोकस करने के बाद पता चल जाएगी कि नेक्स्ट फर्दर आप में क्या चेंज आने वाले हैं। यहाँ यू था और किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन यू। पहला तो सेकंड पर्सन है यू और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। अब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी, राइट। तो यहाँ जो चेंज होगा वो कैसे चेंज हुआ, मी का आई कैसे हुआ, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है यानी नॉमिनेटिव केस है, और जो यू है यहाँ पे वो भी किस चीज़ का केस है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है, इसलिए हमने चेंज किया है। और मी इसी में आ रहा था फर्स्ट पर्सन में, राइट, तो हमने चेंज किया उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, आई। हम नॉमिनेटिव केस के लिए नॉमिनेटिव केस लेंगे, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है यानी कि ये चीज़, यही चीज़ बैक में आती, आई वॉज राइटिंग यू अ लेटर आता, तो हम यहाँ पे मी लगाते। आर यू गेटिंग मी। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन होता तो हम ये वाली चीज़ें लगाते, और हमारे पास सब्जेक्ट में, जैसे सब्जेक्ट कहाँ होता है, जो स्टार्टिंग में होता है, राइट। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट होता है। तो जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस होता है, वो चेंज होता है इस लाइन के अकॉर्डिंग। और जहाँ पोजेसिव केस में बात करते हैं अगर हम प्रोनाउंस के, तो वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस ऑफ द थर्ड पर्सन एग्जाम्पल। हियर इज द थर्ड पर्सन एग्जाम्पल इज दैट दे से टू राम, ही सेज ही विल गोइंग टू जयपुर। दे से टू राम ही विल गोइंग टू जयपुर। अब यहाँ ही है, ही किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ही में तो कोई चेंज ही नहीं होता क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, देयर इज़ नो चेंज। नाउ लेट्स सी कि हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें चेंज हुआ। सी, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने दैट कंजक्शन लगाया है, इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू, बट रिमेंबर वन थिंग, बिफोर पुटिंग एनी काइंड ऑफ आंसर ऑफ डायरेक्ट or indirect, please mention one thing, that is the pronoun of the reported speech. Then use the formula of son and encircle the first one, and it will change according to the subject of reporting verb, and second person will change according to the
object and third person will according that there is no change. So now let's move towards the next one. Here are some rules. If the here are some given that reporting verb, reported speech and tense of indirect. अब हमने बात की थी प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं, राइट? हमने पीछे जो बात की थी वो प्रोनाउंस की थी कि प्रोनाउंस चेंज कैसे होते हैं। इस सन फॉर्मूला से क्या चेंज होते हैं? प्रोनाउंस चेंज होते हैं। अब हम जो टेंसेस हैं, यानी कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम आगे फर्दर देखेंगे, वो चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू टेंसेस। नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ टेंसेस कैसे चेंज होंगे? अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कोई भी हो, चाहे यहाँ पे पास्ट होता, प्रेजेंट होता, फ्यूचर होता, वट एवर भी दैट, कुछ भी होता, तो वो क्या होता? नो चेंज। तो इस डायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता, लेकिन जो प्रोनाउंस हैं आई अकॉर्डिंग टू शी चेंज होगा, तो यहाँ चेंज हुआ। प्रोनाउंस जो है वो सन फॉर्मूला जो है वो हमेशा लगेगा, बट जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस वो चेंज होते हैं। ऐसे ही हमारे साथ फ्यूचर में है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो कोमा से पहले होती है, वो भी डायरेक्ट स्पीच में। तो फ्यूचर टेंस कैसे पता चला? यहाँ विल है, और विल किस में आता है? फ्यूचर टेंस में। देन देखिए, हम जो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है वो चाहे किसी भी टेंस का हो, कोई भी टेंस हो, यहाँ हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें क्या हुआ? नो चेंज। चाहे यहाँ पे पास्ट टेंस भी क्यों ना होता, चाहे यहाँ पे खुद फ्यूचर टेंस ही क्यों ना होता, तो उसमें क्या रहता? यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, यहाँ इन नहीं आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेंसेज एंड रूल कि वो किस तरीके से चेंज होते हैं। जब भी हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए प्रोनाउन चेंज करने में हमें सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखना था, और टेंसेस चेंज करने में सबसे पहले हमने किसको देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब को। और रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार क्या होता है? चेंज होता है हमारा टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स, लेट मी have some pointer on that. Here, change in the verb form. If the simple present, अगर हमारी reporting verb किस में है? Simple present tense में है, ठीक है, तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगी? Simple past tense में, right? So present continuous में होगी तो past continuous में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ बात हो रही है हमारी किसकी? डायरेक्ट, यू कैन से डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच की, राइट? तो हमें ये फर्दर है जो किस तरीके से चेंज होगा, लेट्स सी। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है कि उनकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट में है तो चाहे यहाँ कोई भी टेंस हो वो चेंज नहीं होगा। यहाँ देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, और यहाँ क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है, तो उसका जो टेंस है वो क्या चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट में जाके वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर ऐसे ही हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ आपको ही सैड, शी सैड दिख रहा है, जो सैड है वो पास्ट में आता है, तो हमारे पास ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सो हम यहाँ जो चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ आई एम राइटिंग अ लेटर, और जो आई प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही और शी। हमने यहाँ क्या लिखा? ही और शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ये रिमेंबर रखिए, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? पास्ट टेंस में, तभी हमारे ये फर्दर चेंज हो रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर होता तो कोई भी टेंस होता उसमें इनडायरेक्ट स्पीच चेंज नहीं होती। अगर हमारी नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट सिंपल में चेंज हो जाएगी। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। अगर वो सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में मेनली कोई चेंज नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्रोनाउंस जो है वो चेंज होते हैं। प्रोनाउंस तो देखिए ऊपर भी चेंज हो रहे हैं,
लेकिन यहाँ साथ में टेंसेस भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या है, देयर इज़ नो चेंज इन द टेंसेस। नाउ हियर इज़ द फ्यूचर टाइम सिंपल। अगर हम बात करें यहाँ एग्जैक्टली हम एक मोडाल की तरह यूज़ कर रहे हैं आई विल और आई शैल को। जैसे यहाँ फ्यूचर सिंपल में भी हम विल शैल यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ हमारे पास कंडीशनल आ जाता है, चाहे वहाँ शैल हो चाहे विल हो, अगर वो फ्यूचर टाइम में है। और रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, हमारी पास्ट टेंस में, लेकिन हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, फ्यूचर टाइम सिंपल में। तो कंडीशन क्या लगेगी कि वहाँ शैल और विल की जगह वुड ही लगेगा, यहाँ शुड नहीं लगेगा, यहाँ वुड लगेगा। दिस इज़ द कंडीशनल। अगर हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, यहाँ एक चीज़ और गौर फरमाने की है, देखिए जो शी सेड है वो लास्ट में आया है, फिर भी ये क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज जो पहले आया है वो क्या रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच। नाउ हमें यहीं से पता चलता है कि इसकी कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, शी वुड बी यूजिंग, यहाँ पे भी क्या लगेगा, शी वुड बी यूजिंग द कार हर सेल्फ ऑन द 24th, वट एवर बी द डेट इज़, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वट एवर बी दैट। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ शी सेड लास्ट में था, हमने शी सेड कहाँ लगाया, स्टार्टिंग में। यहाँ हमेशा भले ही लास्ट में हो, लेकिन इनडायरेक्ट में वो चीज़ हमेशा फर्स्ट पॉइंट पे आ जाती है और दैट्स के साथ कंजक्ट होके हमें पूरा सेंटेंस देती है इनडायरेक्ट वे में। आई होप दिस स्लाइड हैज़ बीन क्लियर टू यू। सो रिमेंबर वन थिंग, दिस स्लाइड हैज़ बीन जस्ट फॉर द थिंग जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा हिस्सा होता है, जो फर्स्ट वन कोमा से सेपरेटेड होता है, जो बिना इन्वर्टेड कोमास के हमें प्रेजेंट किया जाता है इन डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, हम वो हिस्सा देखेंगे। इसमें हर एक हिस्सा यहाँ किस चीज़ का था, पास्ट टेंस का था। देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस से रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे भी। और हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि यहाँ से सेड की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है और श्रुति कन्फाइडेड में हमने कन्फाइड की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग, जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब हमारे पास ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, अदरवाइज़ क्या नहीं था, देयर इज़ नो चेंज इन द एनी टेंस। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में ही हो, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ चेंज नहीं होगी वो सुनते हैं, वो है जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई हैबिट हो, या फिर हम बात करें किसी ईडियम की, वो कोई ईडियम भी हो सकती है, राइट। सो यहाँ अगर हमें पास्ट टेंस में कंडीशन है, अगर हमारे पास मेनली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच हो वो उसको यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर हैबिट हो, ईडियम हो, वट एवर बी दैट, तो उस कंडीशन में टेंस कभी चेंज नहीं होता। रिमेंबर दिस, इसमें टेंस कभी नहीं होता। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे, कोई भी ऐसी हैबिट जिसे, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू द एग्जाम्पल, राम सेज ही ब्रशेज हिज टीथ डेली, राइट। तो जो ब्रशेज टीथ डेली है वो क्या हो गया, एक रूटीन हो गया, एक हैबिट हो गई, किसकी, राम की। उसे हम चेंज नहीं कर सकते, बट प्रोनाउंस फिर भी चेंज होंगे अगर हमारे पास कोई भी प्रोनाउन गिवन है रिपोर्टेड स्पीच में, राइट नाउ। लेकिन जैसे अगर मैं यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूं, दैट ही सेज द अर्थ हैज़ बीन रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, द अर्थ इज रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, ओके, ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें ना तो हमारा प्रोनाउन चेंज होगा क्योंकि हमारे पास कोई प्रोनाउन है ही नहीं। सो रिमेंबर दिस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, एंड द सेकेंड कंडीशन विल बी लाइक दैट, कि जैसे आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई विल से दो इंसिडेंट पास्ट के एक साथ होते हैं, ओके। अब दो इंसिडेंट एक साथ कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी, तो जैसे ही मैं पहुंचा पास्ट हो गया,
और ट्रेन जा चुकी थी वो भी पास्ट हो गया, दोनों ही चीज़ें एक साथ घटित हुई। तो इस कंडीशन में भी चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट हो तो चेंज नहीं होगा। ओके, लेट मी गिव द एग्जाम्पल। हियर ही सेज एज सून एज आई हैव reached टू द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड। अब जो ट्रेन डिपार्टेड है उससे पहले कोमा आता है, और उस कोमा को हटा के हम इनडायरेक्ट में दा लगा देते हैं। हम क्या इनडायरेक्ट बनाएंगे? ही सेज एज सून एज, ही यहाँ प्रोनाउन चेंज होगा, हैज़ रीच्ड टू द स्टेशन, द जो हमने कोमा लगाया था ऊपर, द ट्रेन डिपार्टेड। हमने कोई टेंस जो है वो चेंज नहीं किया है, बस फ्यू चेंजेस है प्रोनाउन के एंड कोमा के। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेज एंड देयर चेंजेस इन द वर्ब फॉर्म। आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू। अगर हमारे पास हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मोडाल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मोडाल्स हैं। मोडाल्स कौन से होते हैं? विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड। दिस इज ऑल अबाउट द मोडाल्स। तो यहाँ मोडाल्स में जनरली क्या है? लेट मी चेंज द पॉइंटर हियर। नाउ जस्ट सी वन थिंग, मोडाल्स वर्ब चेंजेस कैसे होता है? विल को हम वुड में, यानी कि एक चीज़ याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? हमेशा पास्ट टेंस में। सी द पास्ट टेंस हियर, रियली सॉरी, द पास्ट टेंस हियर। उसके अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करेंगे? मोडाल चेंज करेंगे। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में विल है तो हम उसे चेंज कर देंगे वुड में, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या थी? पास्ट टेंस में, राइट। सो हम यहाँ चेंज करके हमें क्या मिला? ही सेड रवि विल स्पीक ऑन टाइम। ही सेड दैट रवि वुड स्पीक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, आई थिंक दिस हैज़ बीन सम एरर हियर, स्पीक ऑन टाइम विल बी कम हियर, नोट दिस वन। Right, so this will be the correct one. Like this, can will change into the could and must will be changed into the had to. Remember one thing, must के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो किस चीज़ में चेंज होता है? had to में। shall किस में चेंज होता है? should में। may किस में चेंज होता है? might में। now यही चीज़ें हैं जो हम अक्सर गलतियाँ करते हैं। so let me change from the pointer and make it down. And here are some of the notes. You have to make the screenshot of this and put your notebook and write them down in your notebook. So अगर हमारे पास पास्ट मॉडल ऑलरेडी हैं, जैसे यहाँ शेल था वो प्रेजेंट था और हमने उसको शुड यानी कि उसको पास्ट में चेंज किया था, राइट। तो हमारे पास जो पास्ट मॉडल्स अगर ऑलरेडी गिवन होंगे कहाँ पे? रिपोर्टेड स्पीच में। अगर हमें यहाँ मिलता वी शुड मीट फॉर लंच सम टाइम सून, राइट, तो हम उसमें चेंज नहीं करते, तो हमें यहाँ क्या लिखना होता? ही सेड दैट वी शुड मीट फॉर लंच सम टाइम सून, राइट। सो हियर इज द नोट, हियर सेज दैट ही सेड आई माइट कम, ही सेड ही माइट कम। यहाँ ही क्यों आया? बिकॉज आई इज द प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ही, बट माइट हैज़ नॉट चेंज्ड because might is already been the past modal verb. It means अगर would है, needn't है, whatever भी that है, तो वो क्या है? could, might, ought to, should, used to, ये सारी चीज़ें अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिलती हैं तो नॉर्मली हम उन्हें चेंज नहीं करते। Are you getting my point? Now let's start with the next slide. यहाँ कुछ वो चीज़ें जहाँ सिचुएशन चेंज होती हैं, जहाँ टाइम चेंज होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। हमने सबसे पहले प्रोनाउन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने टेंसेस पढ़े, देन हमने मोडाल्स पढ़े, देन हम अब सिचुएशन एंड द टाइम पर आते हैं। यहाँ बात करें, अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में टुडे हमें मिलता है, देन वी विल से दैट डे। अगर येस्टरडे मिलता है, द डे बिफोर। अगर हमें द डे बिफोर येस्टरडे मिलता है, 2 days बिफोर, देन टुमारो, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, एंड द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम। If I will say next week or next year, in the following year or in the following week, right? Next will change into the following. This will change like the list here, and here are some of the example of changing the situation as well as the time. I went to the theater last night. He said, हमने यहाँ पे he said नहीं लगाया है
क्योंकि हम इसको डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं, जैसे हमें पता है हम लगा सकते हैं यहाँ पे ही सैड ही हैड गॉन टू द थिएटर द नाइट बिफोर। द लास्ट नाइट को किस चीज़ में चेंज करते हैं, द नाइट बिफोर। सो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें इस चीज़ की तो यहाँ आएगा आई एम हैविंग ए पार्टी नेक्स्ट वीक। ही सेज दैट ही वॉज हैविंग ए पार्टी। वेट अ सेकेंड, हियर इज द मिस्टेक। It will be like the following. The following weekend will be come here, and the next I am saying here until next week. मैं यहाँ रुकूँगा next week तक. He said he was staying here there. यहाँ here किस चीज़ में चेंज हुआ, there में. यहाँ प्लेस भी चेंज हो रहे हैं. देन नेक्स्ट किस चीज़ में चेंज किया हमने, फॉलोइंग में. आई केम ओवर फ्रॉम लंडन 3 years ago. अगो को किस चीज़ में हमने चेंज किया था, या तो बिफोर में या प्रीवियसली में. ही सैड ही हैड कम ओवर फ्रॉम लंडन 3 years before. I hope this has been clear to you that how can we change these things to the another thing of this in the indirect speech. Here is the some of the another things. If you will ask you कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम said to या tell to को हम किस चीज़ में चेंज करते हैं, फर्दर चेंज करते हैं. Before moving towards the next slide, I want to tell you one thing कि हमें कभी भी for example said या said अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिलता है तो रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में वो said ही रहेगा, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में said to है तो वो told हो जाता है. Remember this. And for example I will give you there. यहाँ हमारे पास say to था, says to था तो tells में चेंज हुआ. अगर यहाँ say to होता तो हमारा यहाँ say to tell में चेंज हो जाता according to the subject given in the reporting verb, right? और हमारे पास अगर सिर्फ say होता यहाँ पे, ये to नहीं होता, तो हम क्या लिखते, she says to me. यहाँ पे मैं लिखती she says to me that. तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो मैं यूँ की यूँ लिखती, सिर्फ यही था. यहाँ पे आपको अगर टू मिलता है तो आपको चेंज करना है, अगर टू नहीं मिलता तो आपको चेंज नहीं करना है. रिमेंबर दिस. अगर आपके पास से है वो किस में चेंज होगा, से में ही चेंज होगा. लेकिन अगर आपके पास सेज है तो वो किस में रहेगा, सेज में ही रहेगा. और अगर आपके पास क्या है, से टू है, तो यहाँ टू है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टेल में. और अगर मैं यहाँ पे सेज टू लगा दूँ तो ये टेल्स में चेंज हो जाएगा. वैसे ही फर्दर अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास सेड टू, यहाँ पे सेड होता है, सिर्फ सेड हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके चेंज नहीं हो, तो वो सेड ही रहेगा. और इसी तरह अगर हमारे पास सेड टू हो तो वो चेंज हो जाता है टोल्ड में. किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में. अब इस टोल्ड में कई चीज़ें वेरी करती हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वेरी करता है. कई बार टोल्ड हम आस्क्ड में, एडवाइज्ड में, सरप्राइज्ड में, सजेस्टेड में, ये सब चीज़ों में चेंज करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से फर्दर चेंजेस हो रहे हैं. नाउ सी हियर, चेंज द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस येस और नो. आई विल टेल यू, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. एक तो वो जिनमें हम मोडल्स यूज़ करते हैं, यानी कि एक ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं. स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क तो होता है, जैसे यहाँ डू यूज़ हुआ है. ये क्या है, इसमें सिर्फ हम आंसर देंगे येस और नो का. जैसे इसने कहा शी सैड डू यू नो मी. शी सैड इफ़ शी आस्क्ड, यहाँ हमने जो सैड को है वो किस में चेंज किया है, आस्क्ड में. क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हमारा सैड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, या फिर इंटरोगेट में चेंज हो जाएगा. अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. जनरली हमें दो तरीके के मिलते हैं. वन, येस और नो क्वेश्चन वाले. जैसे मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ योर ना, डू यू नो मी, तो वो कहता है येस और नो. ये तो नहीं कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, ये तो नहीं कहेगा ना.
सेकेंड टाइम कौन सी होती है, डबल इंटरोगेटिव, जिसमें हम WH फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, राइट। तो अब हम दोनों ही फर्दर एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से येस और नो क्वेश्चंस को हम चेंज करते हैं, उसमें क्या क्या फर्दर चेंजेस आते हैं। हमें यहाँ चेंज जो है वो फर्स्टली नोट करना है कि इसमें जो सेड है वो किस में चेंज होता है, आस्ट में, और जो इन्वर्टेड कॉमास है वो किस में चेंज होते हैं, इफ़ और वेदर में। यहाँ वेदर भी आ सकता है, ओके। नाउ यहाँ वेदर भी आ सकता है और इफ़ भी आ सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन विच हैज जस्ट पुट इट बाय द डायरेक्ट स्पीच। सो यहाँ पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, द वर्ड सेड इज यूजुअली चेंजेस इनटू द आस्क्ड और इंक्वायर्ड। वो चीज़ें जो आपसे एक क्वेश्चन पूछी गई हैं, इंक्वायर्ड किया गया है, इस पीरियड में फुल स्टॉप जो है हम किस चीज़ को चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ये आपने देखा होगा यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन ये नीचे जाके इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि क्या बन गया, फुल स्टॉप आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज हम इसको क्या बनाएंगे, एक अफर्मेटिव, एक साधारण वाक्य बना देंगे। ये हमारे नरेशन की सबसे बड़ी खासियत है कि हम किसी भी क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं छोड़ते, हम उसको अफर्मेटिव बनाकर दम लेते हैं। और लेट मी गिव यू द एग्जांपल हियर। फर्स्ट चेंज हमने क्या देखा कि हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लिखना है, इफ़ या वेदर, राइट। और सेकंड चीज़ क्या देखी, सैड को हटा के हमने क्या लिखा, ये लिखिएगा, सैड को हटा के हमने आस्क्ड लिखा है। और हमने इसमें क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या लगाया है, पॉइंट यानी फुल स्टॉप लगाया है। ये तीन चीज़ें आप याद रखें इन द रेफरेंस ऑफ येस और नो क्वेश्चन। चाहे हमारे पास इवन WH फैमिली से रिलेटेड भी कुछ ना हो, क्यों ना हो, उसमें भी हम क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेंगे किससे, फुल स्टॉप से। सो अब देखते हैं फर्दर एग्जाम्पल किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को आगे फर्दर लेके जाते हैं अपने डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अब देखिए यहाँ पे कुछ येस नो क्वेश्चंस के थोड़े और एग्जांपल्स हैं, जिसमें सब्जेक्ट के साथ क्या मिलेगा आपको, अप्रोप्रिएट एक्सुलरी वर्ब्स जो है वो मिलेंगी। यहाँ क्या है, ही सेड कैन यू स्विम एंड आई सेड नो। अब यहाँ जनरली हम क्या बोलेंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्विम। या कैन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस था, और हम कुड जो है क्या है, पास्ट फॉर्म है किसकी, कुड की, सॉरी कैन की। सो यहाँ होगा हमारे पास ही आस्क्ड मी यहाँ ऑप्शनल है, यू हैव नो नीड टू मेंशन इट। ही आस्क्ड इफ़ आई कुड स्विम, एंड इस आई सेड को हमने क्या किया, एंड आई सेड आई कुड नॉट, हमने नो को क्या कर दिया, कुड नॉट। या कुड नॉट क्यों आया नो की जगह, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो गिवन था ऑक्सिलरी वर्ब था कैन, और कैन को हम ऑलरेडी किस में चेंज कर चुके थे, कुड में। तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें तो कुडंट आएगा। ओके, नाउ आई थिंक दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू, एंड लाइक दिस यू हैव टू चेंज दिस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। हियर इज द इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। इंफॉर्मेटिव मीन्स WH फैमिली, those question which just begin with the WH। डू डज आर ओमिटेड, इसमें डू डज डिड जो है वो नहीं होते हैं, अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन एंड यूज आफ्टर द सब्जेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्या है, ये आते तो हैं लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं आते, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इफ़ और वेदर इज़ नॉट यूज्ड, अब यहाँ पे क्या होगा, इफ़ और वेदर यूज नहीं होगा और क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया जाएगा। अब सुनते हैं कैसे। एग्जाम्पल, व्हेन डज ही कम हियर, मैंने उनसे पूछा वो कब आ रहा है, मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया यहाँ पे। यहाँ पे फराज ने पूछा कि वो कब आ रहा है, अरे भाई बताओ कब आ रहा है वो, ये मैंने बोला उसको कब आ रहा है वो। तो यहाँ मैंने उसको क्वेश्चन पुट नहीं किया, मैंने सिर्फ जनरली एक बात पूछी है, इन्फॉर्मेशन मांगी है कि वो कब आ रहा है। ओके, तो फराज आस्क्ड व्हेन शी केम देयर, राइट, व्हेन शी केम देयर। अब यहाँ पे हम इफ़ और वेदर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हमारे पास और दैट भी नहीं लगाते हम यहाँ पे। तो दैट क्यों नहीं लगाते, इफ़ क्यों नहीं लगाते और वेदर क्यों नहीं लगाते, लेट्स सी। क्योंकि हमारे पास जो वैन है WH फैमिली है वो खुद में एक कंजक्शन का काम करती है, किस चीज़ का, इन द मिडल ऑफ joining फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द थिंग। प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम करती है हमारी WH फैमिली। सो हम इसको एज ए क्लॉज यानी कि हम इसको एज ए कंजक्शन लेकर चलते हैं। तो हमने यहाँ पे भी क्या नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, और साथ में हमने क्या नहीं लगाया, कोई कंजक्शन नहीं लगाया। सो दिस इज़ द क्वेश्चन अबाउट द इंफॉर्मेशन।
अब हम बात करते हैं कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस की। अगर हम सिंपल टेंसेस और ऐसे प्रोनाउन चेंज करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कुछ हमें अलग से मिल जाए तो हम उसमें ये थोड़ी सोचेंगे कि इसका नरेशन नहीं बन सकता, ऑब्वियसली बन सकता है। फॉर एग्जांपल द नरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी को ऑर्डर, कमांड या एडवाइस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। द वर्ड सेड चेंजेस इनटू टेल। अब जो हमने जो इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट जिसमें येस और नो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि येस और नो किस में चेंज हो रहा है, जनरली येस और नो किस में, सॉरी जो क्वेश्चन है ऑक्सिलरी वर्ब का वो इफ़ में, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम इफ़ लगा रहे हैं और सेड को हटाकर हम आस लगा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, राइट। और ऐसे ही हमने डबल जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, हम वही कंजक्शन यूज़ करते हैं जो हमें WH फैमिली दी गई होती है बीइंग इन ए क्वेश्चन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, राइट। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो सेड टू है वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, सेड टू जहाँ जैसे आस्क्ड में चेंज हो रहा था वहाँ पे, ऐसे ही हमारा सेड किस में चेंज हो जाएगा, टेल, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, परमिट, आस्क्ड, एडवाइस, रिमाइंड, फोर्स, इसी सेंटेंस में हमारा सेड जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ जो यहाँ पे शायद थोड़ी सी मिस्टेकन में है। हियर सेज दैट शी सेड गेट आउट ऑफ माई वे। शी सेड गेट आउट ऑफ माई वे। द सेंटेंस इज टोटली incorrect here. It will be like that. I will tell you. You have to write it down. यहाँ आएगा she asked और she ordered, even she command. यही होगा जब हम किसी को ये कहते हैं गेट आउट ऑफ माई क्लास, तो हम क्या कह देते हैं, ऑर्डर देते हैं जनरली। यहाँ आएगा शी ऑर्डर्ड किसको, मी, आई नहीं, आई डू नॉट गो फॉर इट, शी ऑर्डर्ड। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास है उसको हटाकर हम टू लगा देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, शी आस्क्ड टू गेट आउट ऑफ, यहाँ हिज नहीं, यहाँ क्या आएगा, हर आएगा। रिमेंबर दिस, ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू। यहाँ पे जो है वो यू कैन से वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ होती है जिसमें वर्ब के साथ टू लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ जो होगा वो सजेशन के साथ टू, परमिट के साथ टू, आस्क्ड के साथ टू, मतलब किसी फॉर्म में हम टू यू कैन से इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। हियर इज द ऑफर्स एंड सजेशन इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमारे पास अगर ऑफर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ऑफर आया, शैल आई ब्रिंग यू द सम टी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय ले आऊँ, तो हमारे पास जो चेंज होगा वो कैसे होगा, ही ऑफर टू ब्रिंग मी सम टी। हमने यहाँ कोई रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ नहीं की है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करके बताया है, ही ऑफर टू ब्रिंग मी सम टी। अब देखिए यहाँ हमारे पास दो प्रोनाउन हैं, आई और यू। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के। अब रिपोर्टिंग वर्ब मैंने लगा लिया कि वो कह रहा है ही सैड, ही सैड हमने लगा लिया, ही सैड शैल आई ब्रिंग यू सम टी, ओके। ही ऑफर्ड, अब मैं यहाँ पे ही सैड को, जो सैड है उसको किस चीज़ में चेंज कर दिया मैंने, ऑफर्ड में। और ऑफर्ड में के साथ क्या लगाया, टू। यहाँ क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव वर्ब होगी क्योंकि यहाँ वर्ब के साथ टू भी लग रहा है, मेन वर्ब के साथ यहाँ क्या लग रहा है, टू भी लग रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। और यहाँ पूछा गया है ब्रिंग मी सम टी, आई है अकॉर्डिंग टू किसके चेंज हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या था, ही, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, ही आ गया। और जो यू है, यहाँ यू अब ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में हमने यू को किस चीज़ में चेंज करना था, सी। लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव केस में जो यू है, यू जो था वो मिडल में था, राइट, वो बैक में था, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव केसेस था। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन का जो है यू कैन से ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या था, मी, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, मी। और ऑब्जेक्टिव केसेस की ही बात हो रही है। अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस में यू होता, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में यू था, तो यहाँ हमारे पास जो चेंज हो रहा था वो कैसे चेंज हो रहा था, आई में, राइट। सो लेट्स सी, आई होप दैट दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू कि किस तरीके से हमने दो प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के तौर पर चेंज किया है। नाउ दिस हैज़ बीन
इफ़ यू गेट द सजेशन, अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट स्पीच में क्या है, सजेशंस हैं। अगर जैसे ये कहा शैल वी मीट एट द थिएटर, तो रिपोर्टेड क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड जो स्पीच है यानी रिपोर्टेड यू कैन से इनडायरेक्ट स्पीच है वो कैसे हो जाएगा, ही सजेस्टेड मीटिंग एट द थिएटर। आई थिंक दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, हियर इज द रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या होता है बेटा, जब आप किसी चीज़ को सलाह तो देते हो, एडवाइस देते हो, बट फोर्स के साथ, थोड़ा सा ये लगा के ताकि ये बच्चा थोड़ा काम कर ले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहा गया है, यहाँ ज़रूरी है, टीचर ने कहा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट वेस्ट योर टाइम, उन्होंने कहा कि अपना टाइम जो है वो वेस्ट मत करो। देन द टीचर एडवाइज, यहाँ एडवाइस दी गई है द स्टूडेंट नोट टू वेस्ट द टाइम। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कोई दैट नहीं लगा, कोई इफ़ नहीं लगा, वेदर नहीं लगा, तो रेनफोर्समेंट में क्या होता है, हम सिर्फ उसको टू से जोड़ देते हैं और बाकी इसमें सेड टू को एडवाइस में चेंज कर देते हैं, ये हमारा चेंज फर्दर होता है। नाउ हियर इज़ द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, हियर से शी सेड टू मी प्लीज़ कम विद मी, बहुत ज़रूरी है कि तुम मेरे साथ चलो, ओके क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे क्या पता वहाँ क्या चीज़ मिस हो जाए या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना तुम्हारे बिना वहाँ कोई चीज़ हो ही ना पाए, इसलिए प्लीज़ कम विद मी। सो शी रिक्वेस्टेड मी टू कम विद हर। यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस था, ऑब्जेक्टिव केस, वो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होगा, हर। तो आप ये चीज़ याद रखें कि जब भी हमारे पास कोई एडवाइस में आता है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो हम उसको डू नॉट को हम नोट टू में करते हैं और प्लीज़ को सिर्फ टू में चेंज करते हैं, रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। It is if you have get some command, request, advice, indirect speech, right? So यहाँ अगर आपके पास डायरेक्ट कमांड है, he said lie down Tom। अब देखिए यहाँ हम फर्दर भी यही पढ़ के आए थे कि हमें अगर प्लीज़, रिक्वेस्ट, ये कमांड दी जा रही है तो हम उसको जो कंजक्शन है एज ए टू उससे जोड़ देते हैं, और जो हमारे पास सेड टू है, सेड टू को हम रिक्वेस्ट में, एडवाइस में चेंज कर देते हैं। वैसे ही यहाँ है ही सेड लाई डाउन टॉम। यहाँ टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड वैसे यहाँ गलत नहीं है, बट क्योंकि वो बता भी सकता है कि टॉम तुम्हें इस तरीके से झुकना है, इस तरीके से तुम्हें डाउन होना है, लेटना है। सो यहाँ पर टोल्ड भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ लगा दें कि कोई बॉस है, उसने अपने जो कलीग है टॉम को, उसने कहा कि टॉम नीचे लेट जाओ, तो वो क्या हो गया, ही ऑर्डर्ड टॉम। अब हमने इन्वर्टेड कॉमास का हटा के क्या लगाया, टू लाई। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्फिनेटिव वर्ब्स चलती है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, जब हमारे पास मेन वर्ब के साथ टू जुड़ता है, राइट। यहाँ टोल्ड के साथ टू है, लेकिन जो टॉम है वो बीच में है, और जस्ट बिकॉज द टॉम है इज ए व्हाट इज दिस, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यू कैन से नरेटर। हियर इज सेज इफ़ यू हैव द इनडायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट और वट एवर विद दैट। सो यहाँ पे इन्फिनेटिव्स लग रहे हैं। जस्ट सी वन थिंग, यहाँ जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वो क्या है, इन्फिनेटिव। सो अब देखिए यहाँ जो हमें मिला था ये था कि कमांड और रिक्वेस्ट और एडवाइस। हमें जहाँ कमांड थी, चाहे उसने बताया था, रिक्वेस्ट थी, आप यहाँ ऑर्डर भी लिख सकते हो। देन ऑब्जेक्ट यहाँ क्या था, टॉम हमने लगाया। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस मेन वर्ब। तो यहाँ टू क्या है, टू किसके साथ लगा है, टू लाई के साथ लगा है। सो हमारे पास क्या है, टू प्लस infinitive. So let's start with the another thing. This is all about the command and request. You have to check it out. Now let's move towards the next one. If you get the exclamatory sentences, exclamatory means when there is a sudden sorrow, sudden express you can say joy, admiration, surprise और such feelings, और जिन्हें हम इंटरजेक्शन करके क्या करते हैं, ओ अलास, हरे। जैसे हम कोई मैच जीत जाते हैं तो हम कहते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच। तो इन चीज़ों को हम जो सेड टू है, इनमें जो हम डायरेक्ट स्पीच में अभी तक चेंज करते हुए आ रहे हैं, वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद में। अब अगर हमारी खुशी की बात होगी तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा देंगे, अदरवाइज सोरो, डिलाइट, सरप्राइज, ये सारी चीज़ें हम एक्सक्लेम्ड विद के साथ लगाते हैं।
नाउ सी द एग्जाम्पल, इफ द लीडर से अलास आई लॉस द इलेक्शन, अब लीडर ने कहा ओ मैंने तो जो इलेक्शन था मैं उसे हार गया। अब क्या था, अब ये बात वो खुशी से तो कहेगा नहीं, तो यहाँ लीडर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड लॉस द इलेक्शन। नाउ ही सेड व्हाट ए लवली साइट, अब ये तो कोई अच्छा जगह देख कर ही बोल सकता है। अब क्या है, ही एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन दैट इट वॉज अ लवली साइट। रिमेंबर दिस स्टूडेंट, हम एक्सक्लेमेशन में क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, बट जो सैड है वो किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद में। और जो हमारी जो बात होगी अलास, हुरे, ओ, इन सब पे डिपेंड करती है कि हमारा जो यहाँ वर्ड है वो क्या आएगा, सोरो, डिलाइट, एडमायरेशन, हैप्पी, वट एवर बी दैट, वो हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करके लिखना है। सो दिस इज द नेक्स्ट, दिस वन आर टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो बिकॉज हम कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे कि ये चीज़ है जो हम बिल्कुल एकदम से बोल देते हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या बोलें इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। जैसे ही सेड थैंक यू, अब उसने कह दिया थैंक यू, मैं सिर्फ इसको जनरली इतना ही बोलूँगी, ही थैंक्ड मी। ओके, ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। कोई पूछे उसने तुमसे क्या कहा था, इसके बाद आई विल से ही जस्ट थैंक्ड मी, तो ये हमारी इंडायरेक्ट स्पीच होगी। ही सेड गुड लक, आपकी मम्मा ने आपको गुड लक कहा, पापा ने गुड लक कहा, तो आपके फ्रेंड पूछते हैं कि मामा ने कुछ कहा या पापा ने कुछ कहा, तो आप कहते हैं शी विश्ड मी और ही विश्ड मी लक। तो आप ये चीज़ है ना वो डायरेक्ट अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट टर्म्स, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म्स है। आप ही सैड को बिना यूज़ किए भी आप अपनी लाइफ में नरेशन को यूज़ कर सकते हैं। आप बिना ये कहे कि यही एक्सक्लेम्ड ऑफ थिंग्स, तो आप डायरेक्ट कह रहे हो। ये चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत एक्सक्लेमेशन किस चीज़ की होगी, अगर गुड लक विश कर रहा है, ठीक है, और थैंक यू विश कर रहा है, हैप्पी क्रिसमस विश कर रहा है, तो हम वहाँ विश लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड नहीं लगाएंगे। रिमेंबर दिस वन थिंग, ओके। और फॉर एग्जांपल यहाँ है एक, मैं लिख दूँ गुड ही एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ हमने देखिए इस सेंटेंस को कितना बड़ा बनाया, यानी किस तरीके से चेंज किया। ही गिव मी एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर, राइट। अब मैंने कुछ काम किया, उसने एक्सक्लेम किया, यानी कोई बात कही, उसने कहा गुड, वेरी गुड, योर टीचर सेज दैट इट्स गुड, मैंने एक्सक्लेम किया। तो आप क्या बताओगे अपने फ्रेंड को, माई टीचर गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फिकेशन दैट शी इज़ वेरी satisfied with my work, right? I think these all things have been used in your daily life. So let's move towards the next slide. Here is the change of optative sentences. Optative sentences means द विश, डिज़ायर, होप एंड प्रेयर। जब हम किसी के लिए कोई विश करते हैं, होप करते हैं या प्रेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पढ़ा, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। बर्थडे पर जनरली आपको विशेस मिलती है ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड गिव यू द ग्रेट प्लेजर। तो ये चीज़ होती है जब हमने सेड टू को चेंज करते हैं, किस में, विश में, डिज़ायर्ड में, होप में या प्रेयर्ड में। माई मदर प्रेड दैट, हमने यहाँ कॉमास को उठाकर क्या लगाया, दैट आई माइट। यहाँ माइट क्यों हुआ, क्योंकि मे का फॉर्म है सेकंड, और यहाँ सेड टू था रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए हम क्या चेंज करेंगे, मे को माइट में। देन यहाँ यू है, वो किस एज ए किसकी यूज़ हुआ है, एज एन सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, क्योंकि ये तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब थी और हमारे सब्जेक्ट अभी तक आया नहीं है। तो यू है, भले ही मिड में यूज़ हुआ है, लेकिन हमें देखना है कि वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और ऑब्जेक्ट मी का कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्टिव केस है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, आई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू। अब कुछ मिक्स टाइप सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता सजेशंस है या फिर कुछ और चीज़ है। सो आपने जनरली देखा होगा, व्हाट अबाउट ऑफ्टन इंट्रोड्यूसेस सजेशन एंड इज़ देयर रिपोर्टेड सजेस्टेड। अब कोई चीज़ है कि व्हाट अबाउट, यानी कि किसी का क्वेश्चन है कि जिसका आंसर हमें व्हाट अबाउट के लिए देना होता है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, कुड यू साइन दिस एप्लीकेशन प्लीज़, तो हमारे मन में आएगा क्यों, किस लिए, राइट। तो मैं इस चीज़ को इनडायरेक्ट वे में कहूँगी, ही आस्क्ड मी, यानी कि उसने मुझसे पूछा ही ना कि टू साइन दैट एप्लीकेशन, टू साइन दैट एप्लीकेशन। सो ये हम थोड़ा सा मिक्स टाइप है जहाँ हमने कोड का यूज़ नहीं किया, बट
हमने आई यू को भी नहीं बदला, बट हमने साइन दिस एप्लीकेशन को रखा। ही आस्क्ड मी टू साइन दैट एप्लीकेशन, तो भी हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच गलत नहीं होता। सो रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जब हमारे पास वर्ड अबाउट का क्वेश्चन रहेगा तो वी कैन चेंज दिस थिंग्स एज दिस वन। So this is the last thing, and this is the ending of the narration. We have just done the narration. Um, Here are some of the things which we have just done from the beginning. Remember all the formulas and the usage of narration in your daily life, so that आप अपनी बात को नरेट करने में हिचको ना, राइट। तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो मैंने लास्ट में दिए हैं, प्लीज़ नोट देम डाउन इन योर फेयर नोटबुक, सो दैट आप क्या कर पाएँ, उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ और उनके इसलिए यूजेस को सीख पाएँ। दिस इज़ रियली वेरी थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।